room that I hope you all find a confidence and normalize this money conversation. And that's the attempt of Womanista. Few things which I wanted to just highlight why we've started Womanista. It's a platform 100% for women and with a focus to educate, empower, and bring in a community of women to start uplifting their lives. And इसकी main reason और inspiration है ये picture जो मेरी left side पे, it's a very personal picture. I don't know. हम तो I'm very used to telling my personal story openly. So my daughter, she is 9 years old और मैंने जब 14 साल काम किया है across different industries, different background के लोगों के साथ काम किया है, men, women, बट मैंने हमेशा ये नोटिस किया कि जब मैं अपने लंच टेबल पे शॉपिंग और हेल्थ और फैमिली रिलेशनशिप्स ये वाली बातें करती थी, तो इट हैड टू बी द गर्ल्स, यू नो, ऑल माय ऑफिस की गर्लफ्रेंड्स, उनके साथ मैं ये बातें करती थी. और जैसे ही मैं किसी से अपनी इन्वेस्टमेंट्स की बात करना चाहती थी, आई हैड टू टर्न टू द बॉयज टेबल. ओके, एंड आई डोंट वांट दैट वर्ल्ड टू बी my daughter's world, and this is my little effort and impact for all the girls in this room that I hope you all find a confidence and normalize this money conversation. And that's the attempt of Womanista. These three things are the emergency fund, having a health insurance, and having a life insurance. Without these three, if before you have these three in order and you have started investing, please go back and build these three and then come back into the playing field. Otherwise, you're playing with fire. So just 1 minute I'll take to tell you about each of them. आप डिटेल में आगे जाके समझ सकते हैं. But emergency fund का मतलब क्या है? It's a fund which is available to you, your family, in case of any sort of crisis. COVID, I think, has been the greatest example to all of us कि crisis होता क्या है और crisis बिना बताए आ जाता है. खासकर जब मैं यंग लोगों को पहले क्या करती थी कि एक इमरजेंसी फंड रख लो, तो जनरली द रिस्पॉन्स ऑफ यंग पीपल इज यार क्या बुरा हो सकता है, मतलब कितना बुरा हो सकता है, राइट? अब मैं कोविड के बाद जब लोगों को कहती हूँ कि इमरजेंसी फंड रख लो, तो लोग मुझसे ये नहीं पूछते कि रखे या ना रखे, वो पूछते कितना रखें, बताओ कैसे करें, कहाँ रखें, है ना? तो आप लोग तो रह चुके हो इस टाइम में ऑफ कोविड, सो यू विल ऑलवेज वैल्यू दिस. 6 से 12 महीने तक की एक्सपेंसेस, नॉट योर इनकम, नीड टू बी पार्क्ड in a product which is more than return. इसमें आपका फोकस होना चाहिए कि ये लिक्विड है. लिक्विड का मतलब immediately convertible to cash. Okay, generally what is the fastest way you will get cash? Of course your savings bank account. उसकी बैड न्यूज ये है कि वो आपकी इन्फ्लेशन को कवर नहीं करता. So generally I suggest keeping a mix in savings account and FD so that you have immediate money when you need it. And 50% of this money can be parked in something which is called a debt mutual fund, a liquid fund. Yeah, a liquid fund would not be giving you a fixed return like an FD, but it is similar to the safety. जहां वो invest करता है उसकी safety काफी similar है to the FD safety. तो return fixed नहीं है, लेकिन उसका range 1 से 1.5% above होता है FD से, and this is more tax efficient, and 50% पैसा आप वहां पार्क कर सकते हैं. So just to start off, ये तो सबसे पहला गोल होना चाहिए हर यंग इंसान का. With their first, second, third salary, ये पहले तो वो इमरजेंसी फंड बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस हर यंग बंदे को आफ्टर द एज ऑफ 21 you should have your own health insurance. Please move away from your family's insurance. Once you start making your own money, let that family cover be for your parents. They will need it more than you all young people here. I'm assuming all of you are very young here. You're fairly fit and you will get a decent cover. अगर आप start करते हैं just with a 5 lakh cover also, that's okay, and a small amount of premium that you're paying. So you'll also learn about health insurance. तो उसमें आपको tax की exemption भी मिलेगी and you'll be very self sufficient जब आपकी health insurance है. ये दो चीजें mandatory हो गई. उसके बाद life insurance. I don't know how many of you here are married or who have dependents or who are planning to get married soon, but if you're not planning to get married, you don't need it. If you don't plan to have kids or you don't have anybody dependent on you or you don't have a big loan, तब भी लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है. तो जो भी अंकल आंटी पापा मम्मी आपको LIC बोल रहे हैं कि LIC लो,
You absolutely don't need LIC if you don't have any dependents. ठीक है, तो पहले तो वो LIC को हटा दो अपने लाइफ से. अगर आपकी शादी हो गई है या होने वाली है and you were planning to have children, then you might look at getting a life insurance early in your life. Otherwise, if you don't have a dependent, life insurance is not required for everybody. ठीक है, तो ये चीजें सिंस आज का सेशन म्यूचुअल फंड पे है और इन पे नहीं है, बट आई थॉट इट्स जस्ट फेयर कि मैं आपको एक चीज सिखाऊं और ये ना बताऊं, ये तो गलत होगा ना. तो सेफ्टी बेल्ट पहनाना तो मेरा काम है. सो बिफोर वी गेट ऑन द रोलर कोस्टर, एवरीबडी इन द रूम, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव ऑल दीज 3 ऑल सेट एंड रेडी. उसके बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. Few things that you all must know when you're investing, few concepts. There is something called an open-ended and something called a close-ended fund. Okay, an open-ended fund means that once this fund is launched, now I can anytime invest or anytime redeem, get out of that fund. It's open door. Okay, come in, come out, no problem. Okay, close-ended means that this fund will be open only for a limited number of days. And once I've invested my money, पहले से ही वो कह देंगे कि भाई अगले 2 साल तक आप मांगना मत पैसे वापस. ठीक है, ये क्लोज्ड है, इससे आप निकल नहीं सकते. ओके, जनरली हम लोग फेमिलियर ज्यादा है ओपन एंडेड फंड से, क्योंकि जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ज्यादातर वो सारे फंड्स ओपन एंडेड ही होते हैं. क्लोज एंडेड फंड्स आपको ज्यादातर वैसे मिलेंगे जो थोड़े से डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं. तो वैसे फंड ज्यादा होते हैं क्लोज एंडेड नेचर के, बट इक्विटी फंड ज्यादातर रहते हैं ओपन एंडेड. आप कभी भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी उससे पैसा निकाल सकते हो. दूसरा एक बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट. ठीक है, काफी लोगों को ये अभी इसमें 100% क्लैरिटी है नहीं कि रेगुलर है डायरेक्ट. खासकर पीपल हु हैव आल्सो इन्वेस्टेड ऑलरेडी, दे डोंट नो वेदर दे आर इन अ रेगुलर प्लान और इन अ डायरेक्ट प्लान. अब पहले एक टाइम होता था जब सारे प्लान होते थे रेगुलर. रेगुलर का मतलब है एक म्यूचुअल फंड है जो आपको एक एजेंट ने बेचा है, उसने आपको रेकमेंड किया और आपने खरीद लिया. ठीक है, अब एजेंट अपने दिल की खुशी से तो नहीं बेच रहा है, उसको भी कुछ मिल रहा है आपको म्यूचुअल फंड बेचने के लिए. सो रेगुलर प्लान वो है जिसमें बीच में एक मिडिल मैन खड़ा है, एक एजेंट खड़ा है, और ये एजेंट ऑब्वियसली एक कमीशन कमाएगा. और ये कमीशन कौन देगा? म्यूचुअल फंड कंपनी देगी, लेकिन आपके पैसे में से. ठीक है, तो वो एक एक्सपेंस जुड़ जाएगी म्यूचुअल फंड कंपनी की खाते में, क्योंकि आप एक एजेंट का कमीशन भी फंड कर रहे हैं. ठीक है, सो रेगुलर प्लान टेंड्स टू हैव हायर एक्सपेंसेस. ओके, एंड अ डायरेक्ट प्लान इज व्हेन नेहा सेज लिसन, आई हैव स्टडीड अबाउट म्यूचुअल फंड्स, मुझे पता है हाउ टू चूज माय फंड, आई डोंट नीड अ बैंकर और अ ब्रोकर. तो मिडिल मैन कौन होते हैं? जनरली आपका फ्रेंडली नेबरहुड बैंकर भी एक मिडिल मैन है, आपके अंकल जो ब्रोकर हैं वो भी मिडिल मैन है. अगर आप कहीं एप्स पे जाते हैं, कई एप्स हैं वो भी मिडिल मैन की तरह ही एक्ट करते हैं. ओके, सो आपको ये बड़ा केयरफुली देखना है कि आप एक रेगुलर प्लान में जा रहे हैं या डायरेक्ट प्लान में. मैं कहती हूँ कि मेरे को ऐसा कोई ब्रोकर नहीं चाहिए, मैं खुद जाके इन्वेस्ट करूंगी. सो हेंस आई हैव द ऑप्शन ऑफ बाईपासिंग दिस कमीशन and I will invest in a direct plan. Generally, the difference between a return of a regular to a direct plan could range anywhere between 1 to 1.5%. And if you are an investor who is investing for more than 5 to 7 years, this can be a substantial amount of difference in the return that you generate. Okay, so if you know how to buy a fund, go for a direct plan. If you don't know how to choose a fund, it's okay if you're taking advice and you're paying commission, but I would seriously suggest that itna mushkil nahi hai, learn how to choose your own mutual funds. That's a very in-depth kind of study. Unfortunately I can't cover all of that in today's session, but definitely learn how to choose. There are over 2,000 funds to choose from, so it's not going to be that simple, but you need to learn a structure how you can choose your own funds. The third choice which you need to make, तो पहले ओपन एंड क्लोज एंडेड हो गया, फिर रेगुलर और डायरेक्ट हो गया, और थर्ड चॉइस जो आपको मेक करनी पड़ती है कि ग्रोथ लूं या ये डिविडेंड ऑप्शन. ठीक है, तो ग्रोथ ऑप्शन का मतलब इज नथिंग बट दैट जो भी पैसा ये पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस से म्यूचुअल फंड कमा रहा है, इट्स नॉट गोइंग टू गिव इट बैक टू यू एंड मी. इट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव इट बैक टू यू एंड मी. इट इज गोइंग टू रीपार्क, मतलब प्रॉफिट कमाया उसे लेके और स्टॉक्स खरीद ले या बढ़ा दिया अपना वेटेज किसी स्टॉक्स में, या कोई नए स्टॉक्स खरीद लिए अगर इक्विटी फंड है तो. ठीक है,
डिविडेंड ऑप्शन में क्या होता है, मुझे एक रिटर्न मिलता है। तो अगर म्यूचुअल फंड ने पैसा कमाया, म्यूचुअल फंड कैन डिसाइड कब वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे और कितना। तो ऐसा नहीं है दैट इट्स मैंडेटरी आपको मिलेगा ही मिलेगा डिविडेंड, बट हाँ जनरली जो थोड़े सीनियर लोग होते हैं जिनको एक इनकम चाहिए होती है अपनी इन्वेस्टमेंट से, उनके लिए डिविडेंड ऑप्शन सही रहता है, बिकॉज जितना डिविडेंड मिलता है उतने की ही प्राइस गिर भी जाती है। तो इट्स नॉट सम एक्स्ट्रा थिंग दे आर पेइंग, उन्हीं का पैसा है, वो वापस कैश में निकल आता है और जितना बचा है फिर वो इन्वेस्ट होता है। ठीक है, सो अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं, फॉर यू लुकिंग एट डिविडेंड राइट नाउ मेक्स जीरो सेंस। यू नीड टू चूज बाय डिफॉल्ट ग्रोथ ऑप्शन, क्योंकि ये पैसा अक्यूमुलेट करेगा और कंपाउंडिंग का इफेक्ट यहीं पे आएगा। दूसरी चीज, नाउ डिविडेंड्स हैव आल्सो बिकम टैक्स इनएफिशिएंट। तो ये जो डिविडेंड आ रहा है, अब इस पे टैक्स मुझे देना पड़ता है, पहले मुझे नहीं देना पड़ता था इस बजट से पहले, तो अब मुझे इस पे टैक्स भी देना पड़ेगा, तो फन नहीं है। Growth is the area where you focus on, especially as a young investor.